السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جب سب کچھ بکھر رہا ہوتا ہے، جب ہر طرف اندھیرا ہوتا ہے، جب دل ٹوٹ چکا ہوتا ہے، تب بھی کوئی ایک نور، ایک امید، ایک تسلی آپ کے دل کے کسی کونے میں باقی رہتی ہے؟ یہ کوئی عام احساس نہیں، بلکہ یہ اللہ پاک کی محبت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ لیکن اللہ پاک کی محبت اصل میں کیا ہے؟ کیا وہ صرف ہماری عبادت کا بدلہ ہے، یا پھر یہ ایک ایسی رحمت ہے جو ہر پل ہر موڑ پر ہمارے ساتھ رہتی ہے؟ آج ہم ایک ایسے ہی روحانی سفر پر چلیں گے جو ہمیں یہ سمجھائے گا کہ اللہ پاک کی محبت کا اصل مطلب کیا ہے، اور یہ دنیا کی ہر محبت سے الگ اور بے مثال کیوں ہے۔ اللہ پاک کی محبت کیا ہے؟ اللہ پاک کی محبت انسانی محبت سے بالکل الگ ہوتی ہے۔ یہ ایک پاک اور بہترین محبت ہے جو ہر کمی اور خود غرضی سے پاک ہوتی ہے۔ جب انسان اللہ پاک سے سچی محبت کرتا ہے تو اس کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ اللہ پاک کی محبت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمیں صرف دنیا میں آرام اور خوشحالی دے گا، بلکہ یہ محبت ایک ایسی عظمت اور رحمت سے بھری ہوئی ہوتی ہے جو انسان کو صحیح راہ دکھاتی ہے، اسے گناہوں سے بچاتی ہے اور آخرت میں اس کی کامیابی کا سبب بنتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، رحمان ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جب اللہ پاک کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ انسان نہ صرف اللہ پاک کے قریب ہوتا ہے بلکہ لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ اللہ پاک کی محبت انہی لوگوں کو ملتی ہے جو اس کی راہ پر چلتے ہیں، اس کی بندگی میں خود کو جھکا دیتے ہیں اور اپنی زندگی کو اسی کے بتائے ہوئے راستے پر گزارتے ہیں۔ جب اللہ پاک کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ انسان کی عبادت کو اس کی سب سے بڑی خوشی بنا دیتا ہے۔ اس کا دل اللہ پاک کے ذکر میں سکون پاتا ہے، وہ دنیا کے مقابلے آخر تک ہی فکر زیادہ کرنے لگتا ہے اور ہر حال میں اللہ پاک کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جس انسان سے اللہ پاک محبت کرتا ہے اس کا دل اللہ پاک کے ذکر سے ہر حال میں سکون پاتا ہے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، چاہے دنیا اسے چھوڑ دے، مگر اس کا دل اللہ پاک کی یاد سے خوش رہتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، سن لو، اللہ پاک کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ دیکھنا چاہے اللہ پاک اس سے محبت کرتا ہے یا نہیں تو وہ دیکھے کہ کیا اسے گناہوں سے نفرت ہوتی ہے، کیا وہ توبہ کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ اگر ہاں تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ پاک اس سے محبت کرتا ہے اور اسے گناہوں سے بچا کر اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ جب اللہ پاک کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی صحبت بھی نیک اور اچھے لوگوں سے کروا دیتا ہے، ایسے لوگ جو اس کے ایمان کو اور مضبوط کریں، جو اسے اسلام کی صحیح سمجھ دیں، جو اسے برائی سے روکیں اور اچھائی کی طرف بلائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے دیکھو کہ تم کسے دوست بنا رہے ہو۔ جب اللہ پاک کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی دنیا کی محبت گھٹنے لگتی ہے اور اسے آخرت کی زیادہ فکر ہوتی ہے۔ وہ ان کاموں میں مشغول رہتا ہے جو اسے اللہ پاک کے قریب کر دیں۔ اس کی دولت، اس کا وقت اور اس کی زندگی سب اللہ پاک کی رضا کے لیے ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک کی محبت دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ دولت ہر کسی کو نہیں ملتی، بلکہ انہی کو ملتی ہے جو اللہ پاک کی راہ پر چلتے ہیں، جو اس کی رضا کے لیے جیتے ہیں اور جو اس کی یاد میں اپنے دل کو لگاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ نشانیاں اپنے اندر محسوس ہوتی ہیں تو یہ اللہ پاک کی محبت کا ایک عظیم تحفہ ہے، اور اگر نہیں تو آج سے ہی کوشش کریں کہ اللہ پاک کی محبت حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کو اس کے بتائے ہوئے راستے پر ڈالیں۔ اللہ پاک کی محبت کی نشانیاں۔ اللہ پاک کی محبت انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت اور سب سے اونچا مقام ہے۔ جب اللہ پاک کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے اندر کئی نشانیاں دکھائی دینے لگتی ہیں۔ یہ نشانیاں اللہ پاک کی طرف سے ایک اشارہ ہوتی ہیں کہ وہ اپنے بندے سے خاص محبت کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ پاک اس سے محبت کرتا ہے یا نہیں تو اسے اپنے اندر ان نشانیوں کو تلاش کرنا چاہیے۔
عبادت میں سکون اور لذت محسوس ہونا۔ جب اللہ پاک کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی عبادت میں خوشی اور سکون آ جاتا ہے۔ وہ صرف فرض ادا کرنے کے لیے نہیں بلکہ پورے دل سے نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور دعاؤں میں ڈوب جاتا ہے۔ اس کی عبادت صرف رسم ادائیگی نہیں ہوتی بلکہ اس کے دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے۔ گناہوں سے نفرت اور توبہ کی طلب۔ جس سے اللہ پاک محبت کرتا ہے اسے گناہوں سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ اگر وہ کبھی غلطی سے کوئی گناہ کر بھی لے تو اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے اور وہ ترنت اللہ پاک کی طرف رجوع کرتا ہے۔ وہ رو رو کر اللہ پاک سے توبہ مانگتا ہے اور اپنے اندر بہتری لانے کی کوشش کرتا ہے۔ دل میں صبر اور توقع بڑھنا۔ اللہ پاک کی محبت پانے والے لوگ ہر حال میں صبر کرتے ہیں اور اللہ پاک پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں۔ وہ جو مانتے ہیں کہ ہر مشکل کے پیچھے کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے، ان کا یقین اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ جب دنیا انہیں ٹھکرا دیتی ہے تب بھی وہ مایوس نہیں ہوتے بلکہ اللہ پاک کی رحمت کا انتظار کرتے ہیں۔ اچھے اور نیک لوگوں کی صحبت ملنا۔ جس سے اللہ پاک محبت کرتا ہے اسے نیک اور اچھے لوگوں کی صحبت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ پاک اسے ان لوگوں سے جوڑ دیتا ہے جو اس کے ایمان کو مضبوط کریں، اسے بھلائی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں۔ ایسے انسان کو بری صحبت اور غلط راستوں سے دور کر دیا جاتا ہے۔ دنیا کے مقابلے آخرت کی فکر زیادہ ہونا۔ اللہ پاک کی محبت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ انسان کی دنیا سے محبت کم ہونے لگتی ہے اور وہ آخرت کی فکر زیادہ کرنے لگتا ہے۔ اسے دنیا کی دولت اور شہرت میں کوئی خاص دلچسپی نہیں رہتی بلکہ وہ ان کاموں میں مشغول رہتا ہے جو اسے اللہ پاک کے قریب کر دیں۔ دکھ اور تکلیف میں بھی اللہ پاک سے مصروفیت رہنا۔ کئی لوگ تکلیفوں میں اللہ پاک سے دور ہو جاتے ہیں لیکن اللہ پاک کی محبت پانے والے لوگ ہر حال میں اللہ پاک سے جڑے رہتے ہیں۔ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ شکایت کرنے کے بجائے صبر کرتے ہیں اور اللہ پاک کی رحمت کا انتظار کرتے ہیں۔ دین کی طرف رجحان اور قرآن پاک سے محبت۔ جس سے اللہ پاک محبت کرتا ہے اسے دین کی طرف رجحان دیا جاتا ہے۔ وہ قرآن پاک سے محبت کرنے لگتا ہے، اس کی تلاوت میں سکون محسوس کرتا ہے اور اللہ پاک کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ہر چیز کو قرآن اور سنت کی روشنی میں پرکھنے لگتا ہے۔ سچائی اور انصاف سے محبت کرنا۔ اللہ پاک کی محبت پانے والے لوگ ہر حال میں سچ کا ساتھ دیتے ہیں اور کسی پر جرم نہیں کرتے۔ ان کا دل نرم اور رحم سے بھرا ہوتا ہے۔ وہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں اور انصاف کے راستے پر چلتے ہیں۔ وہ گھمنڈ اور تکبر سے بچتے ہیں اور ہمیشہ نرمی اور حکمت کے ساتھ دوسروں سے پیش آتے ہیں۔ دعاؤں میں لذت اور یقین محسوس ہونا۔ اللہ پاک جن سے محبت کرتا ہے ان کی دعاؤں میں ایک عجیب سا سکون اور اثر آ جاتا ہے۔ وہ اللہ پاک سے باتیں کرتے ہیں، اس کے آگے روتے ہیں اور ہر چھوٹی بڑی چیز کے لیے اسی سے مانگتے ہیں۔ ان کی دعائیں صرف ایک رسم نہیں ہوتی بلکہ ان کے دل سے نکلتی ہیں اور اللہ پاک کے دربار میں قبول کی جاتی ہیں۔ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک اور نیکی کی طرف بڑھنا۔ اللہ پاک جن سے محبت کرتا ہے وہ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ وہ دوسروں کے حق کا خیال رکھتے ہیں، غریبوں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور ہمیشہ خیریت کے کاموں میں آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ وہ کسی کا دل نہیں دکھاتے اور لوگوں کے ساتھ محبت اور رحمت سے پیش آتے ہیں۔ اللہ پاک کی محبت پانے کے 5 طریقے۔ ہر مومن کی سب سے بڑی تمنا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ پاک اس سے محبت کرے، لیکن اللہ پاک کی محبت کوئی معمولی چیز نہیں، یہ انہی کو حاصل ہوتی ہے جو اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک کی محبت پانے کے کئی طریقے ہیں لیکن یہاں ہم 5 اہم طریقوں پر غور کریں گے۔ نفل عبادت اور دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ اللہ پاک اپنے ان بندوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور فرض عبادتوں کے ساتھ نفل عبادتوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ نفل نماز، تہجد، نفل روزے اور ذکر اللہ پاک کی محبت حاصل کرنے کے سب سے بہترین راستے ہیں جس سے ہم اللہ پاک کی محبت پا سکتے ہیں۔ جب ایک بندہ سچے دل سے اللہ پاک سے دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اسے پسند کرتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ پاک کے لیے دوسروں سے محبت کرنا۔ جو لوگ
کی خاطر دوسروں سے محبت کرتی ہیں ان کے لیے اللہ پاک کے یہاں بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ پاک کی محبت پانے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتوں کو صرف دنیاوی مقصد کے لیے نہیں بلکہ اللہ پاک کی رضا کے لیے نبھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے وہ بندے ہیں جن کی آپس میں محبت صرف اللہ پاک کی خاطر ہوتی ہے، وہ قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے اور ان کو کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ اخلاق کو سنوارنا اور غلطیوں کو سدھارنا اللہ پاک اچھے اخلاق کو پسند کرتا ہے، اور جو لوگ اپنے کردار کو سنبھالتے ہیں ان کے لیے اللہ پاک کی محبت مقرر ہو جاتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، جھوٹ اور غیبت سے بچے اور ہمیشہ حق اور انصاف کے راستے پر چلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن کے ترازو میں سب سے بھاری چیز اچھا اخلاق ہوگا۔ جو لوگ اپنی غلطیوں سے سیکھتی ہیں اور انہیں سدھارتی ہیں، اللہ پاک ان کی مدد کرتا ہے اور ان کی طرف اپنی محبت بڑھا دیتا ہے۔ قرآن پاک سے تعلق مضبوط کر، قرآن پاک اللہ پاک کا کلام ہے اور اللہ پاک اپنے ان بندوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے کلام سے محبت کرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ پاک کی محبت چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اس کے معنی سمجھنے چاہیے اور اس کی ہدایتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، یہ برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور سمجھدار لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ دنیا کے مقابلے آخر تک ہی توجہ دینا، جو لوگ دنیا کے بجائے آخر تک وہ زیادہ اہمیت دیتی ہیں، اللہ پاک انہیں پسند کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دنیا میں محنت کرنا چھوڑ دے، بلکہ یہ ہے کہ اس کی رضا، اس کی زندگی کا اصل مقصد اللہ پاک کی رضا اور جنت کی کامیابی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مقصد صرف دنیا ہوگی، اللہ پاک اس کے کاموں کو بکھیر دے گا اور اسے صرف اتنا ہی ملے گا جتنا اس کی تقدیر میں لکھا ہے، لیکن جس نے آخرت کو اپنا مقصد بنایا، اللہ پاک اس کے تمام کام آسان کر دے اور دنیا بھی اس کے پاس آئے گی۔ اللہ پاک کی محبت سے دور کرنے والی عادتیں۔ اللہ پاک کی محبت ہر انسان کے لیے سب سے بڑی دولت ہے، لیکن کئی بار انسان اپنی غلط عادتوں اور اعمال کی وجہ سے اللہ پاک کی رحمت اور محبت سے دور ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسی عادتیں ہوتی ہیں جو اللہ پاک کو ناپسند ہیں اور جن کی وجہ سے انسان خود کو اللہ پاک کی محبت سے محروم کر سکتا ہے۔ قرآن پاک اور حدیث میں ہمیں کئی ایسی عادتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جو اللہ پاک کو پسند نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سے محبت کرے تو ہمیں ان بری عادتوں سے بچنا چاہیے۔ جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا۔ اسلام سچائی پر بہت زور دیتا ہے اور جھوٹ کو نفرت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا ایسی عادتیں ہیں جو انسان کو اللہ پاک کی محبت سے دور کر دیتی ہیں۔ اللہ پاک جھوٹوں سے محبت نہیں کرتا اور ایسے لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو دوسروں کو دھوکہ دے دیتے ہیں۔ گھمنڈ اور تکبر کرنا اللہ پاک کے نزدیک سب سے ناپسند چیزوں میں سے ایک گھمنڈ اور تکبر ہے، اور اپنے عمل پر گھمنڈ کرتا ہے تو اللہ پاک اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی گھمنڈ ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ دوسروں کی برائی کرنا اور غیبت کرنا، کسی کی برائی کرنا اور پیٹھ پیچھے اس کی غلط باتیں کرنا اسلام میں سخت منع کیا گیا ہے۔ غیبت انسان کے اعمال کو برباد کر دیتی ہے اور اللہ پاک ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو دوسروں کے عیب کھوجتے ہیں اور انہیں بدنام کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ حرام چیزوں میں دلچسپی لینا۔ اللہ پاک نے ہمیں حلال اور حرام کے بیچ فرق بتایا ہے، لیکن کچھ لوگ حرام چیزوں میں لپت ہو جاتے ہیں اور غلط راستوں پر چل پڑتی ہیں۔ یہ عادت انسان کو اللہ پاک کی محبت سے دور کر دیتی ہے اور اس کی زندگی میں برکت ختم کر دیتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جو انسان حرام روزی کماتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نماز میں لاپرواہی کرنا۔ نماز اسلام کا سب سے اہم کلام ہے اور اللہ پاک کی محبت حاصل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ بھی، لیکن جو لوگ نماز میں سستی دکھاتے ہیں، اس کی قدر نہیں کرتے اور اسے ہلکا سمجھتے ہیں، اللہ پاک ان سے ناراض ہوتا ہے۔ رشوت لینا اور دینا۔ اسلام میں رشوت خوری کو بہت بڑا گناہ بتایا گیا ہے۔ جو لوگ رشوت لیتے اور دیتے ہیں وہ اللہ پاک کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں اور ان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ یہ عادت انصاف اور امانت دینی ہے اور عوام کو
भ्रम कर देती है। हसद, जलन और नफरत करना। अल्लाह पाक ने हर इंसान को अलग अलग नियमतें दी हैं, लेकिन कुछ लोग दूसरों की खुशियों को देखकर जलन और नफरत करने लगते हैं। हसद करने वाला इंसान न सिर्फ खुद दुखी रहता है, बल्कि यह उसकी इबादत और नेक अमाल को भी बर्बाद कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद अच्छे अमाल को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को जलाकर खत्म कर देती है। वालिदैन की नाफरमानी करना, वालिदैन की इज्जत करना और उनकी खिदमत करना इस्लाम में बहुत बड़ा हैसियत रखता है, लेकिन जो लोग अपने वालिदैन की नाफरमानी करते हैं, उन्हें तकलीफ देते हैं और उनकी बातों को नजरअंदाज करते हैं, वो अल्लाह पाक की नाराजगी मोल लेते हैं। हमने जाना कि किन लोगों से अल्लाह पाक मोहब्बत करता है, किन आदतों की वजह से हम उसकी मोहब्बत से दूर हो सकते हैं और किस तरह हम अपनी जिंदगी को ऐसा बना सकते हैं कि अल्लाह पाक हमसे राजी हो जाए। हम हमेशा ना खुश रह सकते हैं, ना दुखी रह सकते हैं। अगर खुशी मुसलसल हमारी जिंदगी का हिस्सा बनी रही तो कभी ना कभी फिर भी बेसुकूनी होने लगती है। उसी तरह अगर गम हमेशा जिंदगी का हिस्सा बना रहे तो जीने की चाह खत्म हो जाती है। तभी अल्लाह पाक सबके लिए सारे दिन एक जैसे नहीं रखता। कभी वो गम जिंदगी में लाता है, कभी खुशी, ताकि हमें बेसुकूनी ना हो, ताकि हम जिंदगी से उकता ना जाएं। और दुनिया तो मशक्कत का नाम है, यह आरजी है, मुश्किल नहीं। यहाँ बस हम अपने हिस्से का वक्त काटने आए हैं और कुछ बातें सीखने या अल्लाह पाक की पहचान करने आए हैं। उसने इंसान को मजबूत तो बहुत बनाया है, लेकिन यह जो सीने में दिल रख दिया है, सारा मामला उस पर डाल दिया है कि चाहो तो यह पत्थर से भी सख्त और ना चाहो तो शीशे से भी ज्यादा नाजुक। यह चाहे तो लंबा सफर लम्हों में तय कर ले और ना चाहे तो एक कदम पर थका दे। लेकिन जानते हो, थकावट हमेशा दो तरह की होती है। एक वो थकावट जब नींद की जरूरत होती है और दूसरी वो थकावट जब सुकून की जरूरत होती है। नींद की थकावट तो सो लेने के बाद दूर हो जाती है, लेकिन सुकून की थकावट खत्म होते होते सदियां गुजर जाती हैं। और यह थकावट बस तब दूर होती है जब इंसान अल्लाह पाक की तरफ वापस पलटता है, जब अल्लाह पाक के फैसलों पर खुश होना सीख जाता है, जब अल्लाह पाक से मोहब्बत करना सीख जाता है, जब अल्लाह पाक को ढूंढ लेता है। वरना कितना भी सो लो, कितना भी आराम कर लो, कितना कुछ क्यों ना हो आपके पास, लेकिन अगर अल्लाह पाक नहीं तो किसी का होना सुकून नहीं देगा। थकावट तो बस अल्लाह पाक ही दूर कर सकता है। हम इस दुनिया में जो कुछ भी कर रहे हैं, अल्लाह पाक हमारे हर अमल, हर सोच और हर उठते और रुकते कदम से बखूबी वाकिफ है। तो तुम यह क्यों भूल गए हो कि अल्लाह पाक तुम्हारी भी परेशानी और तकलीफ को जानता है? तुम यह कैसे भूल गए हो कि वो तुम्हें नहीं भूल सकता? तुम उससे खफा होकर अब उसे अपनी तकलीफ नहीं बताते, उससे मदद नहीं मांगते, तो इसका मतलब यह तो नहीं कि वो तुम्हें भूल बैठा है और वो तुम्हारी तकलीफ से बेखबर है। वो तो बस यह चाहता है कि तुम जान लो कि वो दिन के बाद रात लाता है और वो रात के साथ रात की खबर भी रखता है। तो कैसे मुमकिन है तकलीफ में तुम्हारी खबर ना रखे? क्या पता यह तकाली बार बार इसलिए आ रही हो कि तुम पर हक जाहिर हो जाए कि अल्लाह पाक के सिवा नहीं वाकई कोई सुलझा सकता। बेशक अल्लाह पाक तो बिन कही बातें भी सुन लेता है, लेकिन तुम जब भी अल्लाह पाक से बात करो तो अपने दिलो दिमाग की सारी बातें अपनी जुबान पर ले आना। यह मत सोचना कि मैं तो बहुत गुनहगार हूँ, अल्लाह पाक तो मुझसे नाराज होगा और इतनी आसानी से राजी भी नहीं होगा, मेरी दुआ को कबूल नहीं करेगा। नहीं, अल्लाह पाक तो कहता है कि तुम इतने गुनाह करो कि तुम्हारे गुनाह आसमान की छत को छू जाएं, और तब तुम आधी जुबान से भी यह कहोगे, ऐ अल्लाह पाक मुझे माफ कर दे, तो मैं माफ कर दूंगा। क्या फिर भी तुम देर करोगे अल्लाह पाक से माफी मांगने में, उसके सामने जाने में? जाओ और अपने टूटे हुए दिल को उसके सामने जाकर रख दो। वो सब बातें बताओ जो तुम्हारा दिल तोड़ती हैं, उससे वो सब मांगो जो तुम चाहते हो। अल्लाह पाक से हर उस चीज की शिकायत करो जो तुम्हें तकलीफ देती है, फिर वो अपने ही तरीके से सबको सबक सिखाएगा। उन सबको तुमसे दूर कर देगा जो तुम्हें अजियत देते हैं, और तुम्हें उन सब से नवाज देगा जिसके लिए तुमने कभी हाथ भी नहीं उठाए होंगे, जिसके मिलने पर अगर तुम सारी जिंदगी भी सजदे में गुजार दो तो भी कम पड़ जाए। बस अपने दिमाग में यह बात कभी मत आने देना कि वो तुम्हारी दुआओं को नहीं सुनता। वो तो है जो तुम्हें सुनता है, उसके अलावा कौन है जो तुम्हें इतने अच्छे से जानता है, समझता है। बात करो उससे, दुआ करो उससे, वो सुनेगा, क्योंकि वो अपनी मखलूक से बेहद प्यार करता है
उसके अलावा हमें सुनने वाला है ही कौन? उसके बगैर हम बिल्कुल नामुकम्मल हैं, हमारा वजूद अधूरा है। जिंदगी किसी की भी इतनी आसान नहीं होती, परेशानी और अफसरदगी हम में से किसी को भी हो सकती है। अगरचे मुसलमान होने का मतलब यह है कि हम अपने अंदर अपने अकीदा जड़े रखते हैं, इसलिए इसका हरगिज यह मतलब नहीं कि हम उस तरह के चैलेंज का सामना करने के काबिल नहीं हैं। जब एक शख्स जहनी चैलेंज के बावजूद अरफात पर पूरी तरह से एतबार करता है, उससे जाहिर होता है कि उसका ईमान कितना अजीम है। ऐसी कौन सी चीज है जो हम सबको एक दूसरे से मुख्तलिफ कर देती है? यकीन। हम सभी अरफात पर भरोसा रखते हैं, मगर कभी कभी हम इतने मुश्किल वक्त से गुजर रहे होते हैं कि हम अरफात पर उस तरह से यकीन नहीं कर पाते। कहीं न कहीं हम घबरा जाते हैं, हमारा ईमान कमजोर पड़ जाता है। अल्लाह की रहमत करीब है, फिक्र मत करें, अल्लाह आपके साथ है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। मैं जानती हूँ कि मुश्किल हो रहा है, दर्द बढ़ता जा रहा है, लेकिन राहत करीब है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपकी मंजिल आपके बहुत करीब है, आपकी खुशियाँ आपका इंतजार कर रही हैं। बस थोड़ा सा सब्र करें और अल्लाह पाक पर भरोसा रखें। सूर काफ में हमारे लिए 4 अहम सबक हैं। पहला सबक हमारे लिए यह है कि अल्लाह पाक हमें हमारे ईमान से आजमाता है, ताकि वो देख ले और हम भी देख लें कि हम अपनी जुबान के और दावों के कितने सच्ची हैं। और फिर जब हम इस आजमाइश में साबित कदम रहते हैं और डगमगाते नहीं हैं, तो अल्लाह पाक ऐसे तरीकों से हमारी मदद फरमाता है जो इंसानी समझ से बाहर है। दूसरा सबक जो सूरह काफ हमें सिखाती है वो यह है कि माल और दौलत सिर्फ नेमत नहीं है, बल्कि यह हमारी आजमाइश भी है कि हम अल्लाह पाक का कितना शुक्र अदा करती हैं। हमें कभी भी यह नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया में जो भी खैर, जो भी भलाई हमें मिलती है वो अल्लाह पाक की तरफ से ही मिलती है। और अगर हम चाहते कि वो भलाई ठहर जाए, हमारे पास से ना जाए, तो हमें अपनी नियमतों में आजीज रहना चाहिए, क्योंकि जो रब दे सकता है वो वापस लेने पर भी कुदरत रखता है। यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया और उसमें मौजूद हर शय आर्जी है। तीसरा सबक यह है कि इल्म भी इम्तिहान होता है, कहीं हम मगरूर तो नहीं हो जाते यह सोच करके हमें सब कुछ पहले से आता है। हमें सब कुछ नहीं आता, कामिल इल्म सिर्फ अल्लाह पाक का है। हमारा इल्म बहुत महदूद है और हम इतने से इल्म के जरिए हम अल्लाह पाक की हिकमत और मसलियत नहीं समझ सकते। इसलिए हमें अल्लाह पाक के फैसलों पर तवक्ल रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जो चीज हमें बुरी लग रही हो वो असल में हमारे लिए अच्छी हो। चौथा सबक यह है कि ताकत भी अल्लाह पाक की तरफ से आजमाइश होती है। वो जिस इंसान को ताकत देता है वो उस इंसान को इस बात पर आजमाता है कि वो उस ताकत को इंसाफ के लिए इस्तेमाल करता है या फिर कमजोर को कुचलने के लिए इस्तेमाल करता है। ये चारों मुख्तलिफ कहानियां हैं, हमें एक ही सबक देती हैं, और वो सबक यह है कि हर चीज अपने साथ टेस्ट लेकर आती है और उस टेस्ट में बस वही पास होता है जो अपने रब को नहीं भूलता। क्योंकि इंसानी फितरत यह है कि वो नेमत अता हो जाने पर सरकस हो जाता है और अपनी हूदो गिरोह अपने साथ बहुत सी जिम्मेदारियां लेकर आती हैं और जो हमें पूरी करनी होती हैं। दुआओं में हकीकत पसंदी से काम नहीं लेते, अल्लाह पाक से मांगते हुए अपनी दुआओं को महदूद नहीं करते। जब उस बादशाह से मांगते हैं तो खुलकर मांगते हैं, फिर मुमकिन या नामुमकिन नहीं देखते। फिर यह नहीं सोचते कि आपकी दुआ और आपके दरमियान कितने बुलंद पहाड़ रुकावट बनकर खड़े हैं, या फिर कितने मीलों के फासले, या फिर कितनी खामियां उबू करनी अभी बाकी हैं। नहीं, जब तवक्कुल करते हैं तो फिर यह सब नहीं देखते, फिर बस असबाब बनाने वाले की तरफ देखती हैं और उसकी शान और उसकी कुदरत को जहन में रखकर उससे इल्तिजा करती हैं, अल्लाह पाक से उम्मीदें जोड़ती हैं। तो फिर टूटने का खौफ नहीं रखते, क्योंकि आपके और आपकी दुआओं के दरमियान सारा मामला बस एक हुक्म का है, कुन हो जा फयाकुन, तो वो हो जाती है। देखो, जब यकीन पुख्ता होगा अपनी दुआओं पर और दुआओं को कबूल करने वाले पर, तो कभी आप शक और सुबह का शिकार ना होंगे। कभी आप किसी से सवाल ना करिए कि हमारी दुआ कबूल कब होगी। अल्लाह पाक पर यकीन रखने वालों को अपनी मांगी हुई दुआओं पर बहुत यकीन होता है, क्योंकि उनका यकीन दुआ का इख्तियार देने वाले पर पुख्ता होता है। देखो, अल्लाह पाक ने चाहा जभी तो हमारे हाथ उसकी बारगाह में उठे हैं, तो यकीन भी रखें अपनी दुआओं पर
यकीन रखने वालों की दुआएं कभी भी रद्द नहीं होती। तबक मोजिज़ों का दरवाजा है, ऐसा दरवाजा जिसमें बेयान लोग कभी दाखिल नहीं हो सकते। तुम्हारा मुकद्दर तुम्हारे अपने हाथ में, जिंदगी को पुरसुकून और बेसुकून तुम खुद ही बनाते हो। तुम वक्त के साथ नहीं चलते हो, बल्कि जहाँ जो रोक दे वहाँ तमाम उम्र ठहरते रहते हो। तुम्हारे आस पास कितनी ही बेशुमार नेमतें होती हैं और तुम एक महरूमियत के लिए उन सबको नजरअंदाज कर देते हो। तुम सोचते हो दुआ मांगना छोड़ देना यकीन और सब्र है, मगर हकीकत उससे बहुत मुख्तलिफ है। यकीन तो वो है कि जब कुछ न होने के बाद भी दुआ के लिए हाथ उठाए जाते हैं। सब्र तो वो है कि दिल के तड़पने के बावजूद मामलात अल्लाह पाक को सौंप दिए जाते हैं। हाँ, ऐसा करना आसान नहीं होता, मगर हाँ, ऐसा कर लेने के बाद आसानियां होती हैं। फिर क्यों परेशान होते हो? जो काम तुम नहीं कर सकते उन्हें अल्लाह पाक के हवाले करना सीखो, और जो काम अल्लाह पाक के सुपुर्द कर दो तो उस पर कभी परेशान मत हो। हाँ, दुआ जरूर मांगो, मगर नसीब से मत लड़ो, नेमतों को मत ठुकराओ, दुआओं की बेअदबी मत करो कह के कि दुआएं कबूल नहीं होंगी, क्योंकि दुआएं हमेशा कबूल होती हैं। और वो तो इतना रहीम है कि काफिर का सवाल भी रद्द नहीं करता। उसकी शान तो यह भी गवारा नहीं कि उसके दर से उसको ना मानने वाला शख्स भी खाली हाथ लौटे। फिर वो कैसे तुम्हारा सवाल रद्द कर सकता है? वो कैसे तुम्हारी आवाज को अनसुना कर सकता है? जब तुम उसे बार बार पुकारते हो तो बस यकीन के साथ सब कुछ उसके सुपुर्द कर दो, क्योंकि जब काम उसको सौंप दिया जाता है तो वो दुनिया की हर ताकत को इकट्ठा करके उस काम के मुकम्मल होने के लिए पाबंद कर देता है। और फिर जब तुम अल्लाह पाक के फैसलों पर सर झुकाना सीख जाते हो तब वो तुम्हें कुन से नवाज देता है। बस फिर तुम होते हो, अल्लाह पाक होता है, तुम्हारी जीत होती है और बदलता हुआ मुकद्दर होता है। हमेशा मुझसे यह सवाल पूछा जाता है कि वो मनपसंद चीज पर कुन क्यों नहीं कहता। हम इंसान है ना, इसलिए यह बात कभी नहीं समझ सकते कि इस एक लफ्ज कुन की क्या अहमियत है। ये वो लफ्ज है जिस पर पूरी कायनात बना दी गई और खत्म भी इसी लफ्ज पर कर दी गई। तो इस लफ्ज को क्या ऐसे ही कह दिया जाए? नहीं, वो कुन तब कहता है जब अपने बंदे के लिए बेहतरीन का वसीला बना देता है। और कभी कभार वो चाहता है कि मेरा बंदा मेरे लिए सब्र करे। क्या उसका हक नहीं कि उससे मोहब्बत जताई जाए? क्या उसका हक नहीं कि उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कर लिया जाए? और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जो तुम्हारी जुबान पर हर दुआ में रवा रहती है वो तुम्हें ना मिले। जानते हो, वो दुआ की तौफीक देता ही तब है जब उसने कुन कहना हो, वरना हमारे आसपास कितने ही ऐसे लोग हैं जो दुआ भी नहीं मांगते, सिर्फ यह सोच करके खुदा नहीं सुनता। तो अगर तुम उसके कुन का इंतजार कर रहे हो तो कैसे मुमकिन है कि कोई बंदा उसकी बारगाह में जाए सिसकते हुए और वो उसे ना सुने? तो बस इंतजार करो, वो इंतजार करने वालों के लिए ही मुझे करता है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है कि तुम मुझे वैसा ही पाओगे जैसा मेरा गुमान करोगे। हम सब पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं सकते। क्या तुम जानते हो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे फौज लगी हुई थी, तब अल्लाह पाक ने समंदर को 2 हिस्सों में बांट दिया। क्या तुम जानते हो जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में जाने का हुक्म दिया गया तो उसने क्यों उस आग को ठंडा कर दिया? क्या तुम जानते हो कि उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को क्यों कुएं में भी पाला? क्या तुम जानते हो कि उसने हजरत हाजरा को सहरा के दरमियान में जमजम क्यों दिया? क्यों उसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में भी महफूज रखा? क्योंकि उसने और क्यों उसने हजरत जिक्रिया अलैहिस्सलाम से नवाजा? और उन सब में बस एक चीज मूसा थी, वो है यकीन की, इसलिए कि उनमें से किसी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने यकीन रखा कि रब रास्ता निकालेगा, और देखो रब ने रास्ता निकाला। वो सब उस पर यकीन रखकर आगे बढ़ते रहे, और देखो उस रब ने भी उन्हें मायूस नहीं किया। और तवक तो यही है कि रास्ता ना हो और तुम कहो अल्लाह पाक रास्ता बनाने वाला है। जब तुम उसका अच्छा गुमान करोगे तो तुम यकीनन सब अच्छा ही पाओगे। और फिर देखो राह वहां से निकलेगी जहां तुम्हारा वहम और गुमान भी नहीं जा सकता। मामलात रब के सुपुर्द कर देने वालों को फिर अपने फैसलों पर कभी अफसोस नहीं होता। दुख हद से बढ़ता है तो रातों की नींद उड़ जाती है। फिर वक्त तहज्जुद आंख भले सो जाए पर दिल नहीं सोता। कोई तो बात है जो परसपदा
छुपी हुई है, वरना बिला वजह तो कोई भी शख्स सजदे में गिरकर जारो कतार नहीं रोता। नसीब के बिछड़े अक्सर मिल जाते हैं, मगर जो अपनी मर्जी से रुखसत हो जाएं, वो फिर कभी वापस नहीं लौटते। इंसान के दिल से शुरू होता है बंदगी का हर रास्ता। दिल दुखाने वालों पर वो अपनी मोहब्बत का दरवाजा नहीं खोलता। रब की मोहब्बत इंसान को हर तलब से पाक कर देती है, फिर वो अपनी इबादत को तस्बीह के दानों में नहीं परोता। उसकी रजामंदी के सामने नसीब बेबस हो जाता है। वो तो बस कुन कहता है, वो होने या ना होने का नहीं सोचता। कबूलियत का अंदाज मुख्तलिफ है, बस उसका वो या तो दिल बदल देता है या मनपसंद राह खोल देता है। वो माफ कर देता है, वो थाम देता है, वो अर्श तक पहुंच जाने वाली दुआएं वापस नहीं मोड़ता। हैरत है जो फैसले अल्लाह पाक के हाथ में है, लोग उनके बारे में भी कितने यकीन के साथ कह देते हैं कि यह नहीं हो सकता। कितने यकीन के साथ लोग उसकी ताकतों से मायूस हो जाते हैं। उसकी दस्तरस में तो वो भी है जो तुमने ना कभी देखा होगा और न सुना होगा। वो तो ऐसी चीजें भी कर सकता है कि तुम उन्हें देखकर होश खो बैठो। सांस लेने से लेकर दिन और रात के आने जाने तक यह सब उसके मुझे नहीं तो और क्या है। क्या तुम नहीं देखते कैसे सारी कायनात उसके घर तवाफ करती है, कैसे उसने परिंदों को अपने नाम की तस्बीह करना सिखाया, कैसे उसने हजारों सितारे बनाए और उनके पहलू में हसीन चांद लाकर रख दिया, कैसे उसने तुम्हें अपने नाम की जिंदगी दी, कैसे उसके एक हुक्म पर कायनात बना दी गई और तुम देखोगे कि यह कैसे उसके एक हुक्म पर उसे खत्म कर दिया जाएगा। तुम एक दफा मांगो तो सही, देना ना देना उसकी मर्जी है। तुम्हारा काम उसकी नेमतों उसकी ताकतों पर यकीन रखना है। तो अब तुम लाख कहो कि यह मुमकिन नहीं, उसकी दस्तरस में सब है। वो जो चाहे जब चाहे कर सकता है और तुम देखते रह जाओगे। जब कभी भी हिम्मत हारने लगो तो बस दिल को इतना समझा लेना कि जो हो रहा है उसमें अल्लाह पाक की रजा है और जो होगा उसमें भी अल्लाह पाक की रजा हो। पता है हम बेसुकून तब होते हैं जब हम अल्लाह पाक पर उस तरह से यकीन नहीं रखते जैसे हमें रखना चाहिए। फिर हमारा दिल बेचैन रहता है और हर चीज बेमायने और उदास सी लगने लगती है। इसलिए एक लंबी सांस लो और गुजरा हुआ अच्छा वक्त को याद करो। और अगर याद करने को गुजरा हुआ अच्छा वक्त भी नहीं मिल रहा तो आंखें बंद करके एक दफा उन तमाम मरहाल पर नजर दौड़ाओ जिन पर अल्लाह पाक ने तुम्हें तुम्हारे कहने से पहले ही संभाल लिया था। उसकी नेमतें याद करो, उसकी हिकमत याद करो, उसकी ताकतें याद करो। रात का दिन में और दिन का रात में बदलना याद करो और आखिर में उसका वादा याद करो कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर अंधेरी रात के बाद चमकता हुआ सवेरा है। और उसे अपने करीब महसूस करो। भूल जाओ कि कोई सहरक का भी फासला है, बस बेसाख होठों पर उसका नाम तारी कर लो। फिर देखना इस सड़क का फासला भी खत्म हो जाएगा और कैसे वो सुकून बनकर तुम में समा जाएगा। जब हम अल्लाह पाक से दूर चले जाते हैं तब वो हमें अजियत या दुख नहीं देता, बस हमें खाली कर देता है, खुद से खाली। फिर हर नजर आने वाला मंजर और हर सुनाई देने वाली आवाज तकलीफ देने लगती है और जिंदगी की मसाफत इतना थका देती है कि थकन से रूह रेजा रेजा होकर बेसाख हो जाती है। बस हम ठहर जाते हैं और वो ऐसा ठहराव होता है जब हम जवाब में होते हैं, सुकून तलाश कर लेते हैं। और जब यह टूटा हुआ दिल अल्लाह पाक से जा लगता है तो वक्त तहज्जुद आंख नहीं लगा करती। फिर तो बस अल्लाह पाक से मुलाकात की तरफ रहती है, ऐसी तरफ जिसमें उलझन और बेचैनी नहीं होती। और जब जार जार बहती हुई आंखें उससे मदद मांगती हैं तो वो इस बेजार रूह को खुद से भरकर हमारे खालीपन में एक एक नई जिंदगी फूंक देता है। जो दिल टूट कर तहज्जुद के सजदों में अल्लाह पाक को पाले वो फिर किसी को खोने से नहीं डरता। इंसान की मोहब्बत तो कमजोर करती है लेकिन अल्लाह पाक की मोहब्बत हमें फिर से मजबूत बना देती है। बहुत निडर जो दिन की खो जाए उन्हें रात की तन्हाइयों में मांगी गई दुआएं वापस ले आती हैं। हम समझते हैं कि अल्लाह पाक हमें नहीं सुन रहा, हमारे साथ हुई ज्यादती को देख नहीं रहा, हालांकि उसे तो पल पल की खबर है। अल्लाह पाक हर बात का, हर ज्यादती का जवाब देता है और उसका जवाब जब आता है तो सवाल खत्म हो जाते हैं। मगर वो जवाब बस तब देता है जब हम किसी की ज्यादती पर सब्र कर लेते हैं, जब हम खामोश हो जाते हैं। हाँ, वक्ती तौर पर हमें उसकी मसले समझ नहीं आती लेकिन
वक्त गुजरने के साथ साथ सब समझ आने लगता है, वो ना समझ में आ सकता है और ना तसव्वुर में लाया जा सकता है। उसकी रहमत, उसका गजब, उसकी पहचान है। और सबसे बढ़कर यह कि उसकी मोहब्बत की कोई मिसाल नहीं। उसकी मोहब्बत उस फूल की खुशबू की तरह है जिसे देखा नहीं जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। और जब उसे महसूस करने लगो तो सारी उलझने सुलझने लगेंगी। और याद रखो, तुम उसे भूल भी जाओ, वो तुम्हें तब भी नहीं भूलता। कुरान पाक में उस रब की बातें पढ़ो तो अकल दंग रह जाती है कि या अल्लाह इतनी मोहब्बत मुझसे, या अल्लाह मैं इस काबिल नहीं। और बेशक जब वो राजी हो जाता है तो सारी कायनात झोली में लाकर रख देता है। अल्लाह पाक तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। वो तुम्हें हर उस लम्हे में सुनता है जब तुम्हें खुद भी तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई देती। तुम उसे देख नहीं सकते मगर वो तुम्हें देख सकता है। तुम्हें वो जानता है, तुम्हें परेशानी है वो जानता है, तुम्हारे कुर्ब को। तो फिर तुम उसको उसके सुनने पर शक क्यों करते हो? क्यों दिल में यह वसवसे लाते हो कि अल्लाह पाक तुम्हें नहीं देख रहा? जो चीज तुम्हें अल्लाह पाक के सिवा कोई नहीं दे सकता उसे इंसान से क्यों मांगते हो? जिस यकीन का हकदार अल्लाह पाक के सिवा कोई नहीं, वो यकीन इंसान पर क्यों रखते हो? मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि सब्र का सिला इतना खूबसूरत भी हो सकता है कि बदले में सिला देने वाला ही मिल जाए। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। और आपने हमारे चैनल साजिद मोबाइल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।